नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खम पे एक नज़र डालते हैं। वक्फ तरमीम बिल राज्यसभा में 93 के मुकाबले में 123 वोटों से मंजूर। पार्लियामेंट की लगी मोहर। मुसलमानों में तशवीश। एहतजाजी तहरीक का क्या फैसला। वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लोकसभा में आज भी देखा गया जबरदस्त शोरगुल। वक्फ तरमीम बिल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, कांग्रेस का ऐलान। अक़लियती बिरादरी को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है, खरगे का बीजेपी पर इल्जाम। मुमताज़ फिल्मसाज, हिदायतकार और अदाकार मनोज कुमार नहीं रहे। फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर। नई थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। राज्यसभा से वक्फ बोर्ड की जवाबदेही, शफाफियत और कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए लाए गए वक्फ तरमीमी बिल 2025 और मुसलमान वक्फ रिएपल बिल 2024 को अपोजिशन की तमाम तरामीम को मुस्तरद करते हुए जुम्मे को अलग सुबह वोटों की तकसीम के जरिए 93 के मुकाबले में 128 वोटों से मंजूर कर दिया। इस तरह से इस पर पार्लियामेंट की मोहर लग गई है। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है। ऐवान ने डीएमके के तिरुचि सेवा की तरमीमी तहरीक को भी 2 वोटों की तकसीम के जरिए मुस्तरद कर दिया। इस तजवीज़ के हक़ में 92 और मुखालिफत में 125 वोट पड़े। अपोजिशन जमातों के कई अरकान ने बिल के तकरीबन हर आर्टिकल में तरामीम की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन ऐवान ने इन तमाम तजावीज़ को सोती वोट से मुस्तरद कर दिया। इस तरह मुखालिफत में डाले गए 95 में से 2 वोट कैंसिल होने के बाद 93 वोट बाकी रह गए। ये दोनों अरकान तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और पार्टी ने ऐवान में इस बिल के खिलाफ वोट दिया था। करने का मैं मांग करके अपना बात को समाप्त करता हूं। I shall first put the motion regarding consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 to vote. The question is that the Waqf Amendment Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There is one amendment. Number 153 by Dr. Syed Nasir Hussain. Are you moving the amendment? Yes, I am moving the amendment, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendment is negatived. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 4 amendments. Number 1 by Shri A.A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Sivdasan. Are you moving amendment? Sir, I am moving the one, sir. Okay. Number 46 by Shri Santosh Kumar P. Shri P.P. Sunil. Are you moving the amendment? Yes, I move. Numbers 104 and 105 by Shri Harish Biran. Sir, I am moving the amendment, sir. Yes. Amendments moved. I shall put first the amendment moved by Shri A. Rahim, Dr. John Britas, Dr. V. Sivdasan to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No.
I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Shri Santosh Kumar P, Shri P.P. Sunil to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendments moved by Shri Harish Biran to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. उधर आज ज़बरदस्त शोरगुल के बाद लोकसभा की कार्रवाई को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई ख़त्म करने के ऐलान से कबल बजट सेशन के दौरान पेश आए और मंजूर किए गए बिलों की तफसीलात पेश की। ताम अपोजिशन के ज़बरदस्त शोरगुल के बाद कान पड़ी और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसी शोरगुल के बीच ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई के अख्तिताम का ऐलान कर दिया। ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के चौथे सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये सत्र 31 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 26 बैठकें की तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर 173 माननीय सदस्यों ने भागीदारी की। इस प्रकार केंद्रीय बजट पर चर्चा में 169 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पूर्व स्थापित किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 3 अप्रैल 2025 को शून्यकाल में 202 सदस्यों ने लोकमत के विषय सदन में उठाए, जो अभी तक लोकसभा के अंदर अभिलंब लोकमत के प्रश्न उठाए गए का रिकॉर्ड है। माननीय सदस्य, मैं सभी सदस्यों को और सभापति तालिका में शामिल अपने साथियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, संसदीय कार्य मंत्री को, प्रतिपक्ष के नेता, विभिन्न दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों तथा लोकसभा सचिवालय के महासचिव, सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं संबद्ध एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सबका धन्यवाद देते हैं। माननीय सदस्य, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी। माता की। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो वक्फ तरमीम बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर जयराम रमेश ने कहा कि इस बिल के अलावा CAA 2019 RTA कानून में 2019 में की गई तरामीम
इंतखाबात के ज़ाबित और 2024 में तरामीम और इबादत गाहों के कानून 1991 से मुताल्लिक़ मसाइल पर भी पार्टी अदालत से रुजू कर चुकी है। इन्होंने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस बहुत जल्द वक्फ तरमीमी बिल की आईनी हैसियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। हमें पूरा यकीन है और हम हिंदुस्तान के आइन में मौजूद उसूलों, दफ़ात, रिवायत पर मोदी हुकूमत के तमाम हमलों की मज़ाहमत जारी रखेंगे। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल पर रद्दमत ज़ाहिर करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को लेकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अक़लियती बिरादरियों को तंग करने के लिए लाया गया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि लोकसभा में जब ये बिल पेश किया गया तो इसके हक़ में 288 और मुखालिफत में 232 वोट पड़े, जो ये जाहिर करते हैं कि बिल में संगीन खामियां मौजूद हैं। इसके बावजूद इसे मंजूरी दी गई, जो हुकूमत की मनमानी को जाहिर करता है। माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहां है इसमें डाल दिए और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीजें डाल दिए। मेरे पास तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, हर अगर मैं बोलते कहूँ इस पर तो वक्त बहुत लगेगा। मैं ये 3 कॉलम बनाया हूँ कि पहले क्या था फॉर्मेशन का, अब बीच में 95 में क्या था, इन्होंने क्या बदलाव किया, ऐसे सारे चीजें आपके सामने मैं रखने की कोशिश तो नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से और बिल को पास करना भी है आपको, तो इसलिए ये जो इतने लोग अपोज कर रहे हैं और आपको देखिए इवन पार्लियामेंट में भी जो आपने कोशिश की सबसे मिलके इसको पास कराने के लिए, सॉरी लोकसभा में, तो ये बिल पास हुआ कितने में, इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए। इसका मतलब यह है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। मौलाना कल्बे सादिक ने वक्फ बिल की मंजूरी पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि यह दुनिया का सबसे काला कानून है। उनका कहना था कि बीजेपी ने काले कानून बनाने में अंग्रेजों को भी मात दे दी। इन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज के जरिए इस बिल को नाकाम बनाया जाएगा। आज के बीजेपी ने कभी मुसलमानों के हित के लिए कोई काम किया है तो हम तो हित के लिए मान रहे, हमेशा उन्होंने हिट किया है, हित नहीं। आप देखिए एक चीज हिट, एक है हित, हिट की है, हित कभी नहीं है, तो लिहाजा हमेशा हिट किया है इन्होंने। तो हम भी इसको भी आप देख लें, अभी पढ़ के सुना दिया हमें वकील साहब ने कि इसमें उन्होंने पूरा प्रावधान रखा है कि जिस बड़े बड़े वक्फ पर जिस पर ले चाहे गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी और उसमें कोई अपील नहीं है। ये दुनिया का सबसे काला कानून है, दुनिया का सबसे काला कानून है। ये तो अंग्रेजों में कानून नहीं बनाया, ये तो अफ्रीका के जंगलों में भी ये कानून नहीं है, अफ्रीका के जंगलों में भी ये कानून नहीं है जो इन्होंने बना दिया है कि अपील नहीं हो सकती उसकी। और जो कातिल होगा वही जज भी होगा, गवर्नमेंट कब्जा करेगी, गवर्नमेंट का अफसर फैसला करेगा। ये जो कातिल वही जज है और अपील नहीं है कोई। इसका मतलब आपने प्रावधान तो खुद ही कर दिया है कि हर खौफ कब्जा कर सकते हैं। बड़ी बड़ी रकमें मिल रही, कई 1000 अरब उनको मिल रहे रुपए, खरबों रुपए उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं। वो खरबों रुपए देखेंगे या मुसलमानों को देखेंगे? वो उनकी लालची आंखें जो है वो खरबों रुपयों के ऊपर है, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं उनको। लिहाजा उन्हें धोखा दिया मुसलमानों को। और जाहिर क्या है, पीसफुल हम लोग हैं, पीसफुल तो इसको इलेक्शन ही में मुसलमानों को जिताया भी है और यही मुसलमानों को इलेक्शन में हराएंगे भी है, बिल्कुल टोटल। हमने देखिए हम लोग डायरेक्ट पीसफुल, हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको इजाज़त है, गांधी जी की तमाम पूरा उनकी तहरीक थी हमारे सामने है, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेज थे, इनकी आधी दुनिया पर हुकूमत थी, इससे ज़्यादा हुकूमत थी, उसको उनको यहाँ से निकाल बाहर कर दिया। उन्हें सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट किया। तो
वही पीसफुल प्रोटेस्ट जो गांधी जी ने चलाया था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वही पीसफुल प्रोटेस्ट हमारे पूरे हिंदुस्तान में चला। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका के टैरिफ और मुल्क की बिगड़ती माशी सूरत-ए-हाल के बारे में बीजेपी कुछ बताना नहीं चाहती और मोदी जी इन मसाइल पर एक बार फिर मौन व्रत शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था आज संकट में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकन टैरिफ्स पर अपनी एक मौन व्रत शुरू कर दी है और आज इसीलिए सारे विपक्षी दल सदन में आके विरोध जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप अपना मौन व्रत तोड़ो, क्योंकि जो अमेरिका के टैरिफ्स आए हैं लगभग 26%, 27%, वो हमारे कृषि क्षेत्र पर, हमारे छोटे उद्योग पर, जो हमारे जेवर के व्यापार करते हैं, जो केमिकल्स के फैक्ट्री जिन्होंने बैठाई हुई है, जो छोटे छोटे खिलौने और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाते हैं, जो जिनकी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रियां हैं, आज ये सारे जो चीज़ एक्सपोर्ट होते हैं उस पर अमेरिकन की 27% टैरिफ बहुत ही एक नकारात्मक प्रभाव रखेगा। इससे कबल अमरीकी टैरिफ के लागू होने के खिलाफ अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में ज़बरदस्त एहतजाज किया और हुकूमत से मांग की कि वो अमरीका के इस टैरिफ के बारे में अवाम को तफसीलात फराहम करें। उनका कहना था कि अमरीका ने हिंदुस्तान पर जो टैरिफ लगाया है वो मुल्की मईशत को शदीद तौर पर मुतासिर करने का बाज़ बनेगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमे की अलग सुबह राज्यसभा को बताया कि मणिपुर में 13 नवंबर से तशद्दुद का एक भी वाक़या पेश नहीं आया है और अब दोनों बरादरियों के दरमियान बातचीत जारी है और जल्दी हुकूमत दिल्ली में एक हतमी मीटिंग होने वाली है। इसके साथ ही ऐवान ने मणिपुर में सदराज के निफाज से मुतालिक आइनी करारदाद को सौती वोट से मंजूरी दे दी है। लोकसभा पहले ही इसकी मंजूरी दे चुकी है। 356(1) के तहत सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय ने 13 फरवरी 2025 को जो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की है, इसकी मान्यता के लिए मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। कुल मिलाकर 10 वक्ताओं ने चर्चा के अंदर हिस्सा लिया है। सबसे पहले मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन किसी भी तरह से डाला जाए 356(1) के तहत ही डाला जाता है। इसमें 2-3 प्रकार होते हैं। एक तो कांग्रेस के शासन में होता था, ऐसे विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए डाला जाए, जो हमने नहीं किया है। सुनिए तो अब दूसरा, सरकार कांग्रेस की हो, विपक्ष की हो या हमारी हो, इसको गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन डाला जाए कानून और व्यवस्था के नाम से, ये भी नहीं हुआ है। मान्यवर, यहां पर 11 फरवरी को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और सभी लोग अखबार देखकर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास का प्रस्ताव ला रही थी। मान्यवर, मैं रिकॉर्ड पर स्पष्ट करना चाहता हूं, उस सरकार के सामने कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया था, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने सदस्य ही नहीं है जो अविश्वास का प्रस्ताव ला सके। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वहां के राज्यपाल ने बीजेपी के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 लोगों ने भी कोई दावा नहीं किया। जब किसी ने भी सरकार के गठन का दावा नहीं किया, इसलिए शून्यावकाश की अवस्था में राष्ट्रपति शासन डालने का निर्णय किया गया। अब इस तरह से कहना कि राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि
समस्या संभलती नहीं। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को डाला गया। नवंबर में 0 हिंसा, दिसंबर में 0 हिंसा, जनवरी में 0 हिंसा, मार्च 13 तक भी 0 हिंसा और उसके बाद से आज तक भी 0 हिंसा। तो एक प्रकार की भ्रांति खड़ा करने का हम प्रयास न करें। और मान्यवर, मैं 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले मणिपुर में क्या था। 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले इतनी ही मजबूत सरकार कांग्रेस की थी वहां पर। और क्या हुआ था, एक वर्ष में एवरेज 225 दिन बंद, ब्लॉकेड और कर्फ्यू रहा था। मैं सब बोलना नहीं चाहता था, उनके समय में हुआ, हमारे समय में हो, वो हमारा सिद्धांत नहीं है मान्यवर। मगर जिस तरह से बात करी गई और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने विजिट नहीं की थी और 1500 लोग। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज थाईलैंड के बैंकॉक में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के साथ दो तरफा बातचीत की। बांग्लादेश में फ़ौज की हिमायत याफ्ता उबूरी हुकूमत के क़याम के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ये पहली आला सतही मुलाकात थी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा मुलाकात शुरू करने से कबल मुसाफहा किया। हिंदुस्तान की जानिब से बैम्स्टिक चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनक़िदा इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, ख़ारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने शिरकत की। मथुरा में वाक़ शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमा 4 अप्रैल को समाअत के दौरान कहा कि वो हिंदू फरीक के इस दावे की जांच करेगा कि मुतनाज़ा ढांचा आसार क़दीमा के तहत मजबूत महफूज शुदा इमारत है और इस वजह से वहाँ मस्जिद नहीं हो सकती। हिंदू फरीक के वकील विष्णु जैन ने अदालत में बताया कि इस्तेदलाल पेश किया कि मज़कूरा मुकाम पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि आसार क़दीमा का महकमा इस जगह की देखभाल कर रहा है। हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के हुए मुस्लिम फरीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हिंदू फरीक को मुकदमे में तरामीम और ASI को फरीक बनाने की इजाज़त देना गलत है। ये तनाज़ा मथुरा में वाक़ शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि की मिल्कियत से मुताल्लिक़ है। हिंदू फरीक का दावा है कि मौजूदा मस्जिद एक मंदिर कई जगह पर बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम फरीक इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहता है कि ये जगह तवील अरसे से मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत इस तनाज़े के मुस्तक़बिल का तयन करेगी। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और जेल में बंद आज़म खां की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। इस बार मामला इनकम टैक्स महकमे से जुड़ा है, जिसने आज़म खां के जौहर ट्रस्ट से 550 करोड़ रुपए वसूल करने का फ़ैसला किया है। ये वसूली यूनिवर्सिटी की तामीर में किए गए मुबैना बेनामी सरमायाकारी की बुनियाद पर की जा रही है। तकरीबन 1.5 साल कबल इनकम टैक्स महकमे ने आज़म खां और जौहर ट्रस्ट के दीगर अरकान के ठिकानों पर छापे मारे थे। तफ्तीश के दौरान इस बात की शवाहिद मिले कि यूनिवर्सिटी की तामीर में से नामी सरमाया लगाया गया है। आज़म खां अक्टूबर 2023 से हरदोई जेल में कैद हैं। इन पर ज़मीनों में नाजायज़ कब्ज़े, माली बेज़ाब्तगियों और दीगर मुकदमात दर्ज हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म समेत जौहर ट्रस्ट के दीगर अफराद भी इस मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। ये मामला न सिर्फ आज़म खां बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा सियासी धचका साबित हो सकता है। सीनियर हिंदुस्तानी फिल्म अदाकार मनोज कुमार का जुम्मे को इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 87 बरस थी। उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में दाखिल किया गया था और वो तवील अरसे से सेहत के मसाइल से दो चार थे। मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने बताया कि उनकी आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। फिल्म डायरेक्टर मनोज कुमार साहब हुब्बुल वतनी पर मबनी फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उनके इंतकाल पर फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने दुख का इजहार किया है। मनोज कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शिराकत के लिए 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। वक्फ तरमीम बिल राज्यसभा में 93 के मुकाबले में 123 वोटों से मंजूर। पार्लियामेंट की लगी मोहर। मुसलमानों में तशवीश, एहतिजाजी तहरीक का क्या फैसला। वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लोकसभा में आज भी देखा गया जबरदस्त शोरगुल।
वक्फ तरमीम बिल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, कांग्रेस का ऐलान। अक़लियती बिरादरी को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है, खरगे का बीजेपी पर इल्ज़ाम। मुमताज़ फिल्मसाज, हिदायतकार और अदाकार मनोज कुमार नहीं रहे, फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।